हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. ग्लोरी श्री शिला प्रभुपाद. सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम है. प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. योर होलीनेस सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज. आज हमारे बीच आज का टॉक डिलीवर करने परम पूज्य श्रील सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज उपस्थित है मॉरिशस से. महाराज अंग्रेजी में टॉक देंगे, जैसे प्राय रविवार के टॉक्स अंग्रेजी में होते हैं. सभी की अनुकूलता के लिए उसका ट्रांसलेशन भी किया जाएगा. तो आप सभी से अनुरोध है कि अभी नाम जप को विराम देकर ध्यानपूर्वक आज का टॉक श्रवण करने तैयार रहिए. We would like to request Maharaj to kindly begin today's talk. Maharaj, we have a Kinchan Bhakt Prabhu to translate. Maharaj. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Gurudev, Maharaj, please accept my humble obeisances. Om Jnanatimirandasya Jnanandana Salakaya Chaksharunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Samrupagadhamayam Dadati Swapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Paramami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Paritanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So today we're going to speak on the particular relationship among devotees. When one is Krishna conscious, how it's very important to be Krishna conscious, to have relationship with everybody, with all devotees. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. तो परम पूज्य सुंदर चैतन्य महाराज बता रहे हैं कि आज हम कृष्ण भावनामृत में भक्तों का संबंध आपस में कैसा होना चाहिए उसके विषय पर चर्चा करेंगे. और कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए भक्तों के मध्य मधुर संबंध होना चाहिए, इसके विषय में आज की जब In fact, there are more disturbances when our relationship among devotees, when the relationship are spoiled, there are most disturbances. जब भक्तों के साथ हमारा संबंध ठीक प्रकार से नहीं होता तो उसके परिणाम स्वरूप ऐसा होता है कि उससे बहुत अधिक कुछ समस्या उत्पन्न हो जाती है हमारे जीवन में. Our relationship other relationship can be rationalized because we spend few time with people in the office, with the workplace, but in devotees community we spend all our time, so everything happen in the community. तो अन्य स्थानों पे या अन्य लोगों के साथ में जो हमारा संबंध है वो कई बार युक्ति संगत हो सकता है, क्योंकि वहां जैसे ऑफिस में है या अन्य कोई रिश्तेदार है उनके साथ हम कम समय व्यतीत करते हैं, परंतु भक्तों के साथ में हम उनकी मात्रा में हम एक बड़ा समय उनके साथ व्यतीत करते हैं, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए. So there is no question of Krishna consciousness without association of devotees. So when something is disturbed, there is the disturbance is also magnified. तो कृष्ण भावनामृत में भक्तों की संगति के बिना हम
आगे बढ़ने की, प्रगति करने की आशा नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भक्तों के मध्य कुछ इस तरीके से कुछ कलह होती है या जिसके कारण कुछ व्यवधान उत्पन्न होता है, तो इसका असर हमारे आध्यात्मिक जीवन पर भी पड़ता है। Is this going to happen? Yes, because we are human beings. Because not all devotees think of the same line. Because we have got our individuality, we have our way of thinking, our nature, our swabhav. So these forces act to speak in a certain way. तो हम ऐसा क्यों होता है भक्तों के बीच? क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं और सभी भक्त जो एक साथ आते हैं, वे एक स्वभाव के नहीं होते हैं। उनका व्यक्तिगत स्वरूप होता है जिसके कारण उनकी कुछ चेतना का स्तर अलग-अलग होता है और इसलिए ये कुछ मतभेद भक्तों के मध्य उत्पन्न हो जाते हैं। There will be disturbances in the community of devotees because we have not been parachuted from Vaikuntha. We are not perfect beings. So even if we are devotees, we are not the perfect devotees. तो महाराज बता रहे हैं कि भक्तों के बीच इस प्रकार का मतभेद होता ही है, तो ये काफी स्वाभाविक है। इसका कारण क्या है कि हम सभी भक्ति करने का प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु हम अभी उस स्तर पर नहीं हैं, उच्च स्तर पर। और जैसा महाराज ने कहा, हम कोई वैकुंठ से नहीं आए हैं कि हमारे में कोई कमी नहीं होगी। तो इस कारण से कुछ मतभेद होने की संभावना हो रहती ही है। For a little discrepancy, it will affect our relationship because we are on the path of perfection. Naturally, there will be some disturbance in our relationship with the devotees. तो यदि भक्तों के बीच में कुछ थोड़ी भी विसंगति हो जाए, तो इसका परिणाम भी ये होगा कि उनके बीच में मतभेद उत्पन्न हो जाएंगे, कुछ डिस्टर्बेंसेस प्रारंभ हो सकती है। So what are the factors that to keep in mind that the relationship remain harmonious? What are the factors? तो अब हम देखेंगे कि वे कौन से विभिन्न कारक है या वे बातें जिनका यदि हम पालन करें, तो ये जो मतभेद होते हैं जिसके कारण हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा उत्पन्न हो सकती है, हम इससे बच सकते हैं। Like in a football team, if we say in a football team, footballers, they're playing. The players are placed in different positions, and they are all actually a team functioning together. Like the goalkeeper is playing in a one way, the forward player is playing in a different way. The middle wings are also playing in different way. The defense is also playing in a certain way, but they are all playing in their respective way, but they are all playing for one common cause. तो महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं फुटबॉल टीम का। जिस प्रकार फुटबॉल टीम होती है, उनमें अलग-अलग खिलाड़ियों को अलग-अलग स्थान पर खेलने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो कोई होता है जो गोलकीपर होगा, कोई होता है जो आगे से खेलेगा, कोई बीच से खेलेगा, कोई गोल को बचाएगा। तो सबका अलग-अलग कार्य होता है उस समय। परंतु सबके मन में ये बात निश्चित होती है कि हम एक टीम है और हमें जीतने के लिए खेलना है। तो चाहे उनके कार्य अलग-अलग हो, लेकिन वो सभी एक टीम होकर के कार्य करते हैं। So the cause of playing is to actually, common cause is to win and to defeat the other. So in maturity, with maturity, this will develop among devotees. This process is a process of surrender. Surrender is to submit to a higher authority. तो जिस प्रकार ये जो खिलाड़ी है, वो एक कोच के निर्देशन में अलग-अलग भूमिका निभाते हैं। उसी प्रकार भक्तों में भी इस प्रकार की एक मैच्योरिटी आनी चाहिए, जहाँ पर उनका जो भी लीडर है, जो उनके काउंसलर है या हायर अथॉरिटीज है,
उनके प्रति उनका समर्पण हो और वे जैसा निर्देशन करे उसके अनुरूप वे कार्य करें। No one should be, no one. So we have to accept authority. No one should never actually be in any situation when we are not under any authority. So Srila Prabhupada's structure is like that. We have to be under the authority. तो हमें किसी का अथॉरिटी या उनका अनुगत्य तो स्वीकार करना ही होगा। किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी को अथॉरिटी ना माने। श्रील प्रभुपाद ने भी इसीलिए ये बताया कि कौन हमारे अथॉरिटी होंगे। So the point is, the more we are Krishna conscious, being a devotee, this is a foundational level. The more we are Krishna conscious, better it will be our Krishna conscious, because if we are disturbed, will cause separate interest. Due to the disturbance, we will have separate interest other than Krishna consciousness, Maharaj. Yes, that's right. तो जब हम कृष्ण भावना में आगे बढ़ते हैं, तो जब हम इस प्रकार का ये जो हमारे जीवन में भक्तों के मध्य कुछ ऐसा मतभेद होने से जो समस्या उत्पन्न होगी, यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, हमारा जो लक्ष्य है कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का, हम उससे भटक जाएंगे और हमारा कुछ और भी लक्ष्य बन सकता है कि अब मुझे ये करना है जो कृष्ण भावनामृत से अलग होगा। That doesn't mean we are like robots. We're not robots. Just like someone may like oranges and someone may like bananas. So there will be differentiation. That will be there, definitely. I like banana. We cannot say I like banana, you should also eat banana. No. But we must know there will be always variegatedness in life, in human being. So that is the meaning of individuality. We are not machine. We cannot have a society of machine. All will be exactly the same. That's not possible. तो महाराज बता रहे हैं कि हम लोग मनुष्य हैं, हम रोबोट नहीं हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सभी की एक ही धारणा हो, एक ही प्रकार के विचार उनके हृदय में आते हो। तो जैसे किसी को संतरा पसंद है, किसी को केला पसंद है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहे नहीं मुझे भी केला पसंद है इसलिए आप भी केला ही खाइए। तो ये रोबोट इस तरीके से कर सकता है, जैसा उसको बताया बस वो उतना ही करे। तो मनुष्य में विविधता होगी ही होगी, ये अत्यंत स्वाभाविक सी बात है। So what do we want is diversities, all our diversities, differentiation, personality types. So they are unified because of one common interest, that is Krishna consciousness. So if we keep Krishna in the center, then the argument, the conflict will be diminished greatly. तो यद्यपि हम अलग अलग हमारा विचार हो सकता है, चेतना हो सकती है, तो कई विविधताएं होती है मनुष्यों में, परंतु उन सब विविधताओं में भी एकता होगी जब हमारा गोल लक्ष्य एक होगा, और वह है कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना। Yes, so Sri Prabhupada gave the example, very vivid example, very interesting example. He said that like in a pond of water with stagnant water, at the point where you strike the pebbles, stones, the water there, they will form a center of ripples or waves emanate from that point. So, and they go outwards. So in every increasing circles, if we throw two pebbles, at different points, so both will start radiating circle that will move outwards. तो श्रील प्रभुपाद एक अत्यंत सुंदर उदाहरण देते थे इससे संबंधित। जैसे एक कोई तालाब है और उसके अंदर यदि किसी ने पत्थर फेंका या कुछ ऐसी चीज डाली, तो उससे क्या होगा कि वहां कुछ तरंगें उठेंगी, और वो जो तरंग है वो जिस स्थान पर वो कुछ पत्थर फेंका गया वहां से निकलेंगी और वो बाहर की तरफ जाएंगी।
तो इस प्रकार अगर किसी ने दूसरे स्थान पर एक और पत्थर फेंका तो वहां से भी तरंग उठेंगी और वो आपस में एक दूसरे से टकराएंगी, लेकिन ये है कि वो तरंग वहां से बाहर की ओर जाती है। So the waves generate will reinforce each other, become stronger and stronger. So if we have our interest from Krishna, then we are throwing the pebbles. If we don't have our interest, which is Krishna consciousness, then we are throwing the pebbles in different, then there will be collusion, there will be clashes, there will be a different opinion, right? तो यदि हमारी रुचि कृष्ण भावनामृत में होगी, तब क्या होगा कि हम एक ही स्थान पर बने रहेंगे और वो जो तरंगें उठेंगी वो काफी मजबूत होंगी, काफी शक्तिशाली होंगी। लेकिन यदि हमारी रुचि यदि अलग अलग है, तो ये होगा कि कोई कहीं पर पत्थर गिरा रहा है, कोई कहीं पर गिरा रहा है, और वहां से जो तरंगें उठेंगी तो उनमें आपस में टकराव होने की स्थिति होगी। How do you resolve difference of opinion? So if everybody points of interest is Krishna, then we will reinforce and we will serve with great enthusiasm. So most important is to keep Krishna in the center. Yeah. तो ये जो विचारों का मतभेद है भक्तों के मध्य, इसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं या इसको सुलझा सकते हैं? तो महाराज बता रहे हैं कि जब हम ये समझेंगे कि कृष्ण हमारे केंद्र बिंदु है और हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, जब इस भाव से सभी भक्त कार्य करेंगे तो अवश्य इन मतभेदों को सुलझाया जा सकता है, इनसे बचा जा सकता है। We all have two hands. The right hands can help the left hand, but the right hand cannot help the left hand without the help of the belly. Right? So the belly we have to feed the belly. We have to have energy, and then the right hand can help the left hand. So the belly is compatible like Krishna. So Krishna is in the center. If we put Krishna in the center, and then we can actually help each other. तो जैसे हम सभी के दो हाथ हैं और जो हमारा दाहिना हाथ है वो बाएं हाथ की सहायता कर सकता है और करता है, परंतु दाहिना हाथ तब तक बाएं हाथ की सहायता नहीं कर सकता जब तक कि उसको हमारे पेट से शक्ति ना मिले। अर्थात जब तक हम भोजन नहीं करें, उसको शक्ति नहीं देंगे, तब तक ये एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण ये एक इस पेट के समान है। अर्थात जब वे मध्य में रहेंगे, जब वे शक्ति संपन्न करते हैं, जब उनको मध्य में रखकर कार्य किया जाता है, तो ये हाथ दूसरे हाथ की सहायता कर सकता है। So very few people will throw their stone on the same point. So some will strike it a bit further away because we are of different level of Krishna consciousness. There is some clashes, colliding going on. Yeah. तो महाराज बता रहे हैं कि बहुत कम ऐसा होता है जहां पर दो या दो से अधिक जो भी भक्त हैं वे एक ही स्थान पर पत्थर फेंकेंगे, जिसपे एक ने फेंका वहीं दूसरा भी फेंके। ये बहुत कम होता है। हो सकता है वो किसी दूसरे स्थान पर डाले। इसका तात्पर्य है, इसका कारण है कि हम सभी कृष्ण भावना के अलग अलग स्तर पर है और उसके अनुरूप हम कार्य करते हैं। When we have minor differences, then the case can be resolved easily. But if it is a bigger deviation, then that will take time. It is difficult to resolve, and that causing pain. So that's why the foundation of Vaishnava relationship is Krishna conscious, to be as Krishna conscious as possible. Then there is a higher chance
there will be harmony. तो जब ये जो मतभेद है, यदि वो मतभेद छोटा होता है तो उसको सरलता से हम लोग सुलझा सकते हैं, परंतु जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, जितना जटिल होता जाता है, उसको सुलझाना उतना ही मुश्किल होता है। तो हमें ये समझना होगा कि हमारे कृष्ण भावनामृत का जो आधार है, कृष्ण भावनामृत को जो नींव है, वो है वैष्णवों के साथ हमारा संबंध। यदि वो संबंध अच्छा है तो हमारा आधार मजबूत रहेगा, और इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में चाहे हम अलग अलग स्तर पे होंगे, लेकिन हमारे मध्य सामंजस्य बना रहेगा। As to be Krishna conscious means to always chant the holy name. Most important, the life of a devotee is to be Krishna conscious by always chanting the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. कृष्ण भावनामृत में यदि हम वास्तव में आगे बढ़ना चाहते हैं या बने रहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें निरंतर भगवान नाम का आश्रय लेना होगा। हम भगवान नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हम इसमें बने रह सकते हैं। In Kulina Gram, the devotees used to go every year to visit Jagannath Puri for the Rath Yatra, and also to get the association of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu would appreciate them very, very much because they were doing seva. They had a seva mood, and they used to make silk rope, weaving that silk rope, and they will bring the silk rope used to carry Lord Jagannath from the temple to the Rath. तो कुलीन ग्राम के जो भक्त हैं, वे प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी जाते थे। वहां जाने के दो उद्देश्य थे। एक तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भी वो सम्मिलित होते थे, और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु का भी संग सानिध्य प्राप्त करना चाहते थे। तो महाप्रभु उनसे बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि वे सेवा कर रहे थे। और वे क्या करते थे, कुलीन ग्राम से वे रेशम की बड़ी बड़ी रस्सियां लेकर के बना के लाते थे, और उनका प्रयोग होता था जगन्नाथ जी को श्री मंदिर से रथ तक ले जाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता था। So Chaitanya Mahaprabhu was very, very happy about for them. And then before the devotees would be departing back to Kulina Gram, so the devotees came to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu. And one of the devotees, Satyaraj Khan, he would say that we are all householders engaged in work. Please give us some instruction. How can we progress in our spiritual life? जब वे जगन्नाथपुरी आते थे, पूरा कार्यक्रम में वे सम्मिलित होते थे, और फिर जब वे वापस जाने का समय आता था, तो एक समय वे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आए, जब वे वापस विदा हो रहे थे कुलीन ग्राम के लिए। और उस समय एक सत्यराज खान नाम के एक भक्त थे। वे महाप्रभु से कहते हैं कि हम सभी तो अपने काम धंधे में फंसे हुए रहते हैं, उसी में लगे हुए हैं, तो आप हमें कुछ निर्देश दीजिए जिससे हम कृष्ण भावना में आगे बढ़ सकें, प्रगति कर सकें। Satyaraj Khan would say, my dear Lord, being we are householders and we are materialistic people, I do not know the process of how to advance in spiritual life. Therefore, please submit, me unto your lotus feet and request you to give some orders so that we can make spiritual advancement. तो वे कहते हैं कि हे प्रभु, हम तो गृहस्थ है, हम भौतिकतावादी है, हमें नहीं पता कि किस प्रकार हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप कृपया हमें कुछ निर्देश दीजिए, आदेश दीजिए, जिसके कारण हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकें। So then Mahaprabhu said, Prabhu kahena Krishna seva Vaishnava sevana nirantara kala Krishna nama sankirtan. Mahaprabhu said that without cessation all the time, continue chanting the holy name of the Lord. And whenever possible, serve him
and his devotees in the Vaishnavas. So he said, when there is no association of devotees, that time they can utilize the No, he time. said, continue to chant the holy name, Okay. whatever possible, So- and serve the devotees. Yes. तो जब उन्होंने इस प्रकार प्रश्न किया तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि आप निरंतर हरि नाम का उच्चारण कीजिए, जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, और जब भी समय हो आपके पास में तब भगवान की सेवा भी कीजिए और साथ साथ वैष्णवों की सेवा भी कीजिए। Then Satyaraj asked Vaishnavas Teniba Kemane, how shall I recognize who is a Vaishnava? तब सत्यराज ने कहा कि हम वैष्णव को कैसे पहचानेंगे कि कौन वैष्णव है। Then Mahaprabhu said, Yandra Mukhe Suni. Ek bar, Krishna Naam, Say Puja Shrestha Savakar. He is best of all human beings. He is also worshipable. So Mahaprabhu replied, whoever chants the holy name of Krishna just once only is worshipable and is a topmost human being. तब जब उन्होंने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा वैष्णव कौन है, तब महाप्रभु ने कहा कि जिसके मुख से एक बार कृष्ण नाम निकलता है वह व्यक्ति सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ है और वह व्यक्ति एक प्रकार से सेवा के या पूजा के लायक है, वर्शिपेबल है वह। So earlier Mahaprabhu said, serve Krishna and serve the devotees, always chant the holy name. But now Satyaraj Khan is asking who is a Vaishnava. So, and the first year he explained the definition of Vaishnava is one who even chant once the holy name. तो जब सत्यराज ने इस प्रकार पूछा तो महाप्रभु ने बताया कि वैष्णव वह है जो एक बार भी भगवान नाम का उच्चारण कर लेता है, उसे वैष्णव समझना चाहिए। And then the next year they again came to the Rath Yatra, the devotees from Kulinagram, and asked, what is our duty for the second year? Mahaprabhu said, Vaishnav Seva Nam Prabhu Kahe, Vaishnav Seva Nam Sankirtan, Dvikara Shigra Pabe Shri Krishna Charana. So Mahaprabhu said, you should always engage yourself in service to the servants of Krishna, the devotees, and always chant the holy name of the Lord. If you do this too, then you will achieve the lotus feet of the Lord very quickly. तो अगले वर्ष जब वे कुलिनग्राम के भक्त पुनः जगन्नाथपुरी आए और जब वे पुनः वापस जा रहे थे, जब विदा होने का समय आया तो वे चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं और यही प्रश्न पूछते हैं कि हम गृहस्थ है, हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए। तब महाप्रभु, अब अगले साल जब महाप्रभु ने उत्तर दिया, महाप्रभु कहते हैं कि आप वैष्णवों की सेवा करो और नाम संकीर्तन करो। ये दो कार्य यदि करोगे तो अत्यंत शीघ्रता से आपको भगवान कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति होगी। So, and then again, he asked again, who is a Vaishnava? तब उन्होंने फिर पूछा, जब महाप्रभु ने कहा वैष्णव की सेवा करो, तो उन्होंने कहा हमें कैसे पता चलेगा वैष्णव कौन है? You know, so again, the third year Mahaprabhu said, a first class Vaishnava, he who is in his presence only, by his presence is make others chant the holy name of Krishna. तो अगले वर्ष जब वे पुनः आए तब महाप्रभु ने बताया कि प्रथम श्रेणी का वैष्णव वह है, या उत्तम वैष्णव, उत्तम अधिकारी वह है जो कि जिसकी उपस्थिति मात्र से, वो कहीं उपस्थित है, उसकी उपस्थिति मात्र से जीव कृष्ण नाम लेना प्रारंभ कर देते हैं। दर्शने मुखे ऐसे कृष्ण नाम, तो ये वैष्णव प्रदान. So the greatest of all, just by his presence, it enthuse, encourage others, inspire others to chant the holy name.
He's a topmost devotee. So here we can see Mahaprabhu has given 3 definitions of who is a Vaishnava. तो महाप्रभु वैष्णव की 3 परिभाषा देते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि वह वैष्णव प्रधान है, सब वैष्णवों में श्रेष्ठ है, जिसकी उपस्थिति मात्र से अन्य वैष्णव नाम कृष्ण नाम लेना प्रारंभ करे। तो वह वैष्णव जो अन्यों को प्रोत्साहित करता है कृष्ण नाम लेने के लिए केवल अपनी उपस्थिति मात्र से। So 3 definitions. The first one is even if here even chanting once only Hare Krishna is the best. Second year, one who constantly chant Hare Krishna. And third year, one by simply being in his presence, you feel inspired. So his Vaishnava Pranam is the greatest of all. तो महाप्रभु ने ये 3 परिभाषा दी, जिसमें कहते हैं कि जो वैष्णव है वह है जो एक बार भी कृष्ण नाम उच्चारण कर ले, वह वैष्णव है। फिर महाप्रभु ने कहा उससे श्रेष्ठ जो वैष्णवतर है, जो उससे थोड़ा श्रेष्ठ है, वह वो है जो निरंतर भगवान नाम लेता हो, वह उससे श्रेष्ठ है, वैष्णवतर है। और उससे भी श्रेष्ठ जो प्रधान है या जो वैष्णवतम है, वो सबसे उत्तम स्तर का जो वैष्णव है, वो वह है जिसकी उपस्थिति मात्र से अन्य जीव कृष्ण नाम लेना प्रारंभ करते हैं। So how do we make progress in our spiritual life? To keep good relationship with the devotees. If we don't do these 2 things, there cannot be good relationship in the community. And what are these 2 things? Chanting the holy name, and not only chanting but also serving the devotees. तो यदि हम इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे, ये जो 2 निर्देश महाप्रभु ने दिए इनका, तो हमारा भक्तों के साथ में संबंध अच्छा होगा, प्रगाढ़ होगा और हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे। तो वे 2 बातें क्या है? उसमें पहला है नाम आश्रय, भगवान के नाम का जप करना, संकीर्तन करना, और दूसरा है वैष्णवों की सेवा करना। The more we chant, the better is our level of Krishna consciousness. So sometimes just doing managerial work, management, so much there, one may become proud, and that must not happen, right? So we must not just also chant and yeah, just not only chanting, but so Haridas Thakur has actually given the example. It's very exemplary. So what is a perfect Vaishnava? He was always humble, and he never became proud. Because he was always chanting. तो हम जितना अधिक जप करेंगे, उतना हमारा कृष्ण भावनामृत का जो स्तर है वह श्रेष्ठ होगा। हमारा जो लेवल है कृष्ण भावनामृत में, वो बढ़ता जाएगा। तो कई बार जिसको कुछ बड़ा पद मिल जाता है, तो वे उस पद के कारण उनमें अभिमान आ जाता है। मैं अभी इस पोजीशन पे हूँ, मैं इस पद पर हूँ, ये पदाधिकारी हूँ मैं। तो यह भावना सही भावना नहीं है। हरिदास ठाकुर बहुत सुंदर बताते हैं इसके विषय में कि वो भक्त प्रगति कर सकता है आध्यात्मिक जीवन में जो कि विनम्र है और जिसमें अभिमान नहीं है। चाहे उसको जो भी सेवा मिले उसको स्वीकार करे, लेकिन अभिमान ना हो उसमें। Yes, we may be also chanting, but unless we are in a humble way of service of the Vaishnavas, service to the devotees, this ego, this pride, desire for name, fame, and prestige, and so on, that all these will become great obstacle in our spiritual life. So we are chanting, but we are not serving properly, then it will happen. Is it, Maharaj? If we are chanting, but we are not in a very humble way of service, like serving the Vaishnavas, and then all this ego, pride, name, fame will become great obstacle. Yes. तो महाराज बता रहे हैं कि यदि हम कोई कहे ठीक है मैं जप तो कर रहा हूँ, तो यदि हम केवल जप करते हो लेकिन सही भाव के साथ यदि हम वैष्णव सेवा ना करें,
वैष्णवों का उचित प्रकार से सम्मान ना करें तो क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा आध्यात्मिक जीवन में बाधा उत्पन्न होगी, वो बाधित होगा, और साथ ही साथ हम भी नेम फेम ग्लोरी, ये जो हमारे, हाँ मुझे भी सम्मान चाहिए, नाम चाहिए, हम इसी उसमें पढ़ के रह जाएंगे और हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने से रुक जाएंगे, हमारी प्रगति So बाधित हो जाएगी। Chaitanya Mahaprabhu he's wisely added this point here. He did not say only chanting, which is chanting is a yug dharma, yes, but he did not say only chanting, but he also added. But together with the Lord, chanting, he said, you have to serve the Vaishnavas. Serve the Vaishnavas, we have to be humble, definitely. तो महाप्रभु ने ऐसा नहीं कहा इन निर्देशों में कि केवल नाम जप करो, ऐसा नहीं कहा महाप्रभु ने। वे कह रहे हैं नाम जप निसंदेह युग धर्म है, तो नाम जप करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ वैष्णव सेवा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और वह वैष्णव सेवा विनम्रता के साथ होनी चाहिए, तब हमारे आध्यात्मिक जीवन तीव्रता से आगे बढ़ सकता है। Mahaprabhu used to chant his burst, that's during Vata Yatra. So remember that. Gopi Bhartu Padakamalayor, Dasa Dasa Anudas. Not boss, Anubos, but Dasa Dasa Anudas. So even if one is senior or in a position of seniority position, we have to be cautious also about the principle of our identity. तो महाप्रभु कहते हैं कि वास्तव में महाप्रभु बता रहे हैं मैं कौन हूं, तो वे कह रहे हैं गोपी भर्तुर पद कमलयो दास दासानुदास, गोपियों के पति कृष्ण हैं, उनके दास के दास का दास हूं। तो वे ये नहीं कह रहे कि मैं स्वामी के स्वामी का भी स्वामी हूं, अपितु वे दास के दास का दास बन रहे हैं। तो जो वरिष्ठ भक्त होते हैं उनमें ये विनम्रता होती है या होनी चाहिए, जिसमें वे ये समझें कि वास्तव में तो मैं सेवक का सेवक ही हूं। So what is my identity? What is our identity? I'm the servant of the servant.